Hello dear students, welcome to NEET PYQ Trishul program Star Classes Latur. Myself Krishna sir, physics faculty. आज हम NEET PYQ में वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. इससे फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. रीड द क्वेश्चन. The first question, this is from NEET 2023. An electric dipole is placed at an angle of 30 degrees with electric field of intensity 2 into 10 power 5 Newton per Coulomb. It experiences a torque equal to 4 Newton meter. Calculate the magnitude of charge on the dipole if the dipole length is 2 centimeter. He asking charge. First of all, we have to write the given data. So data में क्या दिया? Angle, dipole makes an angle 30 degrees with electric field and electric field intensity कितना दिया? 2 into 10 power 5 Newton per Coulomb. It experiences a torque. Torque का symbol tau. Tau is given as 4 Newton meter. Right? Calculate the magnitude of charge. He asking Q and dipole का length 2L is given as 2 centimeters. We have to convert into meters for SI unit के लिए 2 into 10 power minus 2 meter. What is the torque formula? When dipole is placed in uniform electric field, torque का formula क्या है? Torque is equal to P sin theta. क्या है formula? P sin theta. P बोले तो electric dipole moment. Electric dipole moment का formula क्या है? Length of the dipole into either charge, any charge. So substitute करो values. Torque is given as 4. 4 is equal to here. Torque is equal to electric dipole moment का formula. Length of the dipole into either charge into E sin theta. Substitute the given data. Torque is given as 4 and length of the dipole 2 into 10 power minus 2. Electric field intensity 2 into 10 power 5 and charge you have to calculate and sin angle कितना दिया 30 degrees. Sin 30 value 1 by 2 into charge is Q. 2 gets cancelled. Simplify करो क्या मिलेगा? Q is equal to 4 upon 2 into 10 power minus 2 plus 5 कितना है? Plus 3. 2 1s are 2 2s are. So we can get the answer 2 into 10 power minus 3 coulombs. 10 power plus 3 ऊपर लेके गया minus 3 होता. So final answer is 2 millicoulombs. Right? So कौन सा option is right? Option C is correct. This is from torque formula P sin theta. The next question, two charged spherical conductors of radius R1 and R2. Radius R1 and R2 are connected by a wire. Two conductors, charged conductors. These two conductors are connected by a wire. Wire से connect हुआ. First one का radius क्या दिया? R1. Second one का radius is given as R2. Then the ratio of surface charge density of the spheres. Surface charge density denoting its symbol sigma. Sigma 1 upon sigma 2 is asking. Ratio of surface charge density. Surface charge density बोले तो charge per unit area. Right? Q by A. What is the area of sphere? 4 pi r square. Sigma is equal to Q by 4 pi r square. बोले तो यहाँ से sigma is directly proportional to Q and inversely proportional to r square. But these two spherical conductors are connected by a wire. When they are connected by a wire, which is same, potential is remains same. Potential constant rather. When the two conductors are connected with a wire, after some time both are having same potential. Potential का formula क्या है? V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q upon R is same. So बोले तो यहाँ से Q and R का relation क्या था? V is same. 1 by 4 pi epsilon naught constant. Q is directly proportional to R. R बोले तो radius है. So Q is directly proportional to radius. यूज करो फार्मूला. हमको पता है सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q by R square for two different
स्पीयर्स के लिए सिग्मा 1 by sigma 2 is equal to q1 by q2 into r2 by r1 whole square, right ना, two spheres के लिए. But q is directly proportional to r ना, because when the two spheres are connected by a wire, potential must be same. So finally q1 by q2 जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, r1 by r2, because q is directly proportional to radius of the sphere. Sigma 1 by sigma 2 is equal to r1 by r2 into r2 square by r1 square. r1 square में r1 gets cancelled, r2 square में r2 gets cancelled. So final answer is the ratio of surface charge density sigma 1 by sigma 2 is equal to, हमको क्या मिले final answer, r2 by r1. Remember the formula. What is the surface charge density formula? Charge per unit area, sigma equal to q by a. ये कौन सा मटेरियल दिया, स्फेरिकल कंडक्टर दिया, एरिया ऑफ द स्फीयर 4 pi r square. ये फार्मूला से sigma is directly proportional to q and inversely proportional to square of radius. When the two wires are connected with a wire which is same, potential is same. Potential का फार्मूला 1 by 4 pi epsilon naught q by r. V is same. From here we can write q is directly proportional to r. यही यूज किया हमने. q1 by q2 जगह पे we write r1 by r2. After simplification we are getting the answer r2 by r1. That's it. So कौन सा option is right? Option C is correct. Next, the acceleration of an electron due to mutual attraction between electron and proton when they are at 1.6 angstroms apart. You are asking acceleration of an electron. We know that what is the force between electron and proton का formula, F is equal to EQ ना formula, F is equal to EQ. We know that force between electron and proton, F is equal to formula is 1 by 4 pi epsilon naught charge of electron and charge of proton same है. So Q into Q square by R square, right ना. But he asking acceleration of electron from Newton's second law. F is equal to क्या है formula, m into a. So m a is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into q square by r square. Simplify करो. So m a is equal to m into a is equal to 1 by 4 pi epsilon naught वैल्यू ऑलरेडी उन्होंने दिया 9 into 10 power 9 into q square बोले तो e square है. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेम है 1.6 into 10 power minus 19 into 1.6 into 10 power minus 19 अपॉन r square. दोनों के बीच में गैप कितना दिया 1.6 एंगस्ट्रम्स ना. 1 angstrom equal to how many meters, 10 power minus 10 meters, right? So 1.6 into 10 power minus 10 square is there ना. और एक बार लिखो 1.6 into 10 power minus 10. सिंप्लीफाई करो. 1.6 gets cancelled, 1.6 gets cancelled. So remaining क्या मिले, ma is equal to mass into acceleration is equal to क्या लिया 9 into 10 power 9, देखो इधर minus 19 minus 38 और डिनोमिनेटर में -10 कितना -20 ऊपर लेके जाओ +20 होता. सो फाइनली क्या मिलेगा 20 plus 9 29 minus 38 कितना है 9 ना. 29 minus 38. So mass of electron with 9 into 10 power minus 31. 9 into 10 power minus 31 into acceleration is equal to 9 into 29 minus 38. 10 power minus 9. Simplify कर आंसर क्या मिलेगा. So A is equal to 9 into 10 power minus 9 upon 9 into 10 power minus 31. Right ना. 9 gets cancelled. So 10 power minus 31 ऊपर लेके जाओ -9 plus 31 कितना आता रहा 22 ना. 22 plus 9 31 वाले ना. So 10 power 22 आएगा 10 power plus 22. So 10 power 22 meter per second square. That's it. So कौन सा option is right? Option D is correct.
What is the force between electron and proton? 1/4 pi epsilon q square by r square. यहाँ से F equal ma लिखो, acceleration of the electron हम measure कर सकते हैं after simplification. Next, 2 point charges A and B having charges plus q and minus q respectively are placed at certain distance apart. 2 point charges है, एक प्लस क्यू है, दूसरा वाला माइनस क्यू, दोनों के बीच में गैप ले लो आर गैप. प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ. ये दोनों के बीच में फोर्स कितना रहता? एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर. इक्वेशन नंबर 1 ले लो, राइट ना. अभी क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया? इफ 25% ऑफ चार्ज ऑफ ए इज, here this is A, this is B. A का चार्ज 25% transferred to B, then force between the charges becomes. उसका मीनिंग क्या है? चार्ज A Q के Q का 25% is transferred to B. बोले तो इसका चार्ज लूज हो रहा, उसका चार्ज क्या हो रहा? गेन हो रहा. सो फॉर A के लिए, फॉर A 25% of charge transfer to B. बोले तो 25% डिक्रीज हुआ रहा, ट्रांसफर टू B. सो बोले तो इसका चार्ज Q1 ले लो. Q1 इज इक्वल टू, आफ्टर ट्रांसफरिंग कितना है चार्ज? Q जगह पे Q1 ले लो. कितना रिड्यूस हुआ? 25%. Q माइनस 25% बोले तो 25%, 25/100 इंटू Q1. So Q1 कॉमन ले लो, 1 माइनस 25/100 कितना मिलेगा? 75/100. So after transfer the charge, first charge कितना है रहा? Q है, Q1 है, there is only Q. This is Q. Next for B देखो, B को कितना ऐड हुआ? ये 25% लॉस हुआ, 25% किसको ऐड हुआ? चार्ज एट B को ऐड हुआ. फॉर B 25% ऑफ चार्ज एडेड. बोले तो उधर लूज हुआ, ये लूज हुआ बोले तो B को ऐड हुआ. चार्ज गेन्ड, उसको वैल्यू Q2 ले लो. Q2 इज इक्वल टू माइनस Q. What is the charge at B? माइनस Q ना, माइनस Q को 25% ऐड करो, 25/100 इंटू Q. ये भी Q कॉमन ले लो, क्या मिलेगा? माइनस 100 प्लस 25, माइनस 75/100 आएगा. नाउ फोर्स बिटवीन देम. अभी आफ्टर 25% ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड, ए के पास चार्ज कितना है रहा? 75Q/100. बी के पास चार्ज कितना है? माइनस 75/Q इंटू 100. अभी दोनों के बीच में फोर्स. F का फार्मूला क्या है? F इज इक्वल टू, F डैश ले लो, K इंटू Q1 Q2 रहा. Q1 बोले तो Q इंटू 75/100, Q इंटू 75/100. सेकेंड चार्ज कितना है? Q2, Q इंटू माइनस 75/100 बाई आर स्क्वेयर. सो क्या मिलेगा? 75/100 बोले तो 25 3 जा 25 4 जा. हियर भी 25 3 जा 25 4 जा. So finally आंसर क्या मिलेगा? देखो, F डैश इज इक्वल टू, देखो 3/4 इंटू 3/4 कितना है? 9/16. 9/16 इंटू K Q स्क्वेयर बाय R स्क्वेयर. एक्चुअली डोंट टेक इधर नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन क्यों नहीं लेना? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस में कभी भी मैग्नीट्यूड लेना, नॉट द साइन. 9/16 टाइम्स ऑफ K Q स्क्वेयर बाय R स्क्वेयर. ऑलरेडी K Q स्क्वेयर बाय R स्क्वेयर बोले तो कितना है? F. So F dash is equal, क्या मेरे आंसर? 9/16 times of F. So option B is correct. So question में क्या दिया? Initially Q1 minus Q separated by certain distance. At that time दोनों के बीच में फोर्स कितना मिले? K Q square by R square. But उन्होंने कंडीशन दिया 25% of charge of A is transferred to B. बोले तो first charge at A loses the 25%, charges B gains the 25% of charge. So first A के लिए Q1 equal Q minus 25/100 into Q1, Q into 75/100. For B के लिए 25% of charge added minus Q plus 25/100.
q into minus 75/100. Now force between two charges formula use करके अप्लाई करो, हमको क्या मिलेगा आंसर 9/16 times of kq square by r square. So answer is 9f/16. f बोले तो initial force between the two charges. Next question, suppose the charge of proton and electron differ slightly. One of them is minus e and other is e plus delta e. If the net electrostatic force and gravitational force between the two hydrogen atoms placed at a distance d is 0. उसका meaning क्या है? Net force on the system is 0. बोले तो electrostatic force is balanced with gravitational force. Electrostatic force किसको बीच में है? Proton and electron. हाइड्रोजन आटम में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन रहा था, नेट चार्ज कितना रहा था? नेट चार्ज बोले तो इलेक्ट्रॉन चार्ज प्लस प्रोटॉन चार्ज. देखो टोटल चार्ज क्या था? माइनस ई प्लस डेल्टा ई. सो माइनस ई प्लस ई गेट्स कैंसिल, नेट चार्ज क्या मिलेगा? डेल्टा ई. नेट चार्ज इज डेल्टा ई, राइट? सो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0. बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बैलेंस्ड विद ग्रेविटेशनल फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉर्मूला 1/4 pi epsilon naught q square by d square. q बोले तो नेट चार्ज कितना है? डेल्टा ई. डेल्टा ई स्क्वायर बाय डी स्क्वायर. ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर्मूला g into mass of hydrogen atom square by d square. सेपरेशन तो सेम हो लेना, d square gets cancel. सेपरेट द डेल्टा ई स्क्वायर इक्वल क्या मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4 pi epsilon naught into g into mass of hydrogen atom square. Substitute करो all these values. 1/4 pi epsilon naught value 9 into 10 power 9. 4 pi epsilon naught value क्या मिलेगा? 1/9 into 10 power 9 into g value universal gravitational constant 6.7 into 10 power minus 11. mass of hydrogen दिया ऑलरेडी कितना है? 1.6 into 10 power minus 27 whole square. So after simplifying, आप सिंप्लीफाई करो, आंसर आपको मिल जाएगा डेल्टा E is equal to 2 into 10 power minus 37 coulombs. So इसमें ऑर्डर कितना है? 10 power minus 37 is the order. Okay. The next question. A charge Q is placed at the center of the line joining of two equal charges. देखो ये कैपिटल Q लिया है, A भी कैपिटल Q लिया, बीच में स्मॉल q रखा. The system of three charges will be in equilibrium if Q is equal to. बोले तो ये चार्ज कितना है? तो ये चार्ज पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहता. पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में बोले तो नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज इज बिकम 0. नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज बिकॉज ऑफ स्मॉल q एज वेल एज चार्ज इज एट a. नेट फोर्स क्या होता ऑन दिस चार्ज? फोर्स ड्यू टू स्मॉल q प्लस फोर्स ड्यू टू कैपिटल Q, दैट इज F1 प्लस F2. सिस्टम इक्विलिब्रियम बोले तो नेट फोर्स कितना है? 0. पहले हम F1 बोले तो फोर्स बिटवीन कैपिटल Q एंड कैपिटल Q, दोनों के बीच में गैप कितना है? स्मॉल r ले लो, दोनों के बीच में गैप कितना है? स्मॉल r. F2 बोले तो फोर्स बिटवीन स्मॉल q एंड कैपिटल Q. सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज, K इंटू कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q कितना? कैपिटल Q स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस F2 बोले तो फोर्स बिटवीन स्मॉल q एंड कैपिटल Q क्या आएगा? K इंटू स्मॉल q इंटू कैपिटल Q बाय r बाई 2 होल स्क्वायर. एक्चुअली फोर्स ऑन दिस चार्ज कब 0 होता? ये चार्ज मस्ट बी नेगेटिव आना है. क्यों? ये चार्ज का वजह से फोर्स उसका तरफ एक्ट होता, ये चार्ज का वजह से फोर्स ऐसा तरफ एक्ट होना चाहिए. एट दैट टाइम ओनली नेट फोर्स 0 होता. अदरवाइज अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो नेट फोर्स क्या होता? ऐड हो जाता, 0 नहीं होता. दैट्स व्हाई Q मस्ट बी नेगेटिव में आना आंसर. सो सिंप्लीफाई करो, क्या मिलेगा? K इंटू क्यू स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस K into capital Q into small q by r square by 4. 4 ऊपर जाते हैं, right? R square gets cancel, K भी gets cancel, Q भी gets cancel. So क्या मिला आंसर? K is equal to minus 4Q. So small q is equal क्या आएगा? Minus Q by 4. That's it. That is the answer. So to become system equilibrium, small q must be negative में आना. That value कितना है? Minus Q by 4 is the correct answer. Important question. The next question, two positive ions each carrying a charge Q are separated by a distance d. If F is the force of repulsion between the ions, the number of electrons missing from each ion will be. Number of electrons, how many electrons miss हुआ पूछ रहे क्वेश्चन में. So first of all write the formula.
between force between two ions 1 by 4 pi epsilon naught q square by d square. इधर from quantization of charge q is equal हम क्या लिख सकते हैं? From quantization of charge, you asking number of ions na? Quantization of charge, net charge is nothing but integral multiple of charge of electron. So n into e लिखो, substitute करो value, q जगह पे n ही substitute करो, f is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into n square e square upon separation कितना दिया दोनों का बीच में? d दिया, d square. You asking number of ions ना, n separate करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, n square e square is equal to 4 pi epsilon naught into f d square. यहां से n क्या होता है? n square is equal to 4 pi epsilon naught f d square by e square. right ना, n is equal क्या होता? under root over 4 pi epsilon naught f d square upon e square. So कौन सा ऑप्शन is right? Option C is right. 4 pi epsilon naught f d square upon e square. Next question. An electron is moving round the nucleus of hydrogen atom in a circular orbit of radius r. So electron ऐसा घुमा रहे, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस क्या पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन ऐसा घुमा रहे. सो रेडियस कितना दिया? r दिया. द कूलम फोर्स बिटवीन द टू कितना है पूछ रहे. फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज. फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव. बट लिखने को टाइम में क्या लिखना? वेक्टर फॉर्म है तो 1 by 4 pi epsilon k into q1 q2 by एक्चुअल फार्मूला क्या है? मैग्नीट्यूड है तो q1 q2 by r स्क्वायर. बट वेक्टर फॉर्म पूछा ना, r कैप से मल्टीप्लाई करो, बिकॉज f is equal k into q1 q2 by r square is the not the vector form. वेक्टर फॉर्म के लिए हम लोग क्या करना? r कैप से मल्टीप्लाई करना. सो अभी f bar is equal क्या आएगा? k into q1 q2 by r square into r bar बोले तो r bar, r कैप बोले तो r bar by r, r into r, r cube. So final formula f bar is equal to 1 by 4 pi epsilon k into charge of electron minus e, charge of nucleus plus e upon r square into r, r cube into r bar. So final formula observe करो, f bar is equal to minus k e square upon r cube into r bar. This is the final answer. So कौन सा option is right? Option D is correct. This is only magnitude form k q1 q2 by r square. So vector form के लिए हम क्या करना? r कैप से मल्टीप्लाई करना. r कैप बोले तो r bar upon mod r bar, mod r बोले तो r. So option D is correct. The next, 2 point charges minus q1 plus q placed at a distance L as shown in the figure. The magnitude of electric field intensity at a distance R. At a distance बोले तो he is not mentioned the point is on axial line or equatorial line. That's why we can write the formula at any point. Electric field intensity at any point के लिए formula क्या है? Electric field intensity at any point, at any point के लिए formula क्या है? E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught p by r cube into under root over 3 cos square theta plus 1. देखो इधर p is nothing but electric dipole moment, r is nothing but distance r from the dipole. So E and r का relation है यहाँ से, E is inversely proportional to r cube. So कौन सा option is right? A is correct. Okay, ये फार्मूला यूज करके हम एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल सकते हैं, इक्वेटोरियल लाइन पे निकल सकते हैं, हर एक एनी पोजीशन में निकल सकते हैं, आपको एंगल पता है, राइट? सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है रहा. पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल हैविंग परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तो रहा था. ओके, फॉर एग्जांपल इफ यू टेक एग्जांपल HCl, H प्लस Cl माइनस बोले तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है?
नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जीरो हुआ क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, हैविंग परमानेंट डाइपोल मोमेंट, P is not equal to zero, then the molecules are called क्या बोलते हैं? polar molecules having a permanent electric dipole moments. Next, a spherical conductor of radius r, radius 10 centimeter, has a charge of 3.2 into 10 power minus 7 coulombs, distributed uniformly. Uniformly distributed हुआ है sphere का ऊपर, uniformly distributed हुआ. What is the magnitude of electric field at a point 15 centimeters from the center of the sphere? Electric field at a point के लिए formula 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught value 9 into 10 power 9. Charge क्या दिया? 3.2 into 10 power minus 7 upon R value 15 into 10 power minus 2 whole square. So 15 into 10 power minus 2 whole square. Simplify करो, क्या मिलेगा? 9 into 10 power 9 into 3.2 into 10 power minus 7 upon 15. 15 जा कितना है? 225. 225 into 10 power minus 4. ये सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर 1.28 into 10 power 5 न्यूटन पर कूलम मिलेगा. सिंप्लीफाई करके चेक करो, आपका आंसर 1.28 into 10 power 5 न्यूटन पर कूलम. इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट का फार्मूला आउटसाइड द स्फीयर 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. इनसाइड द स्फीयर है तो आंसर कितना रहता रहा? 0. क्यों? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज नॉट इनसाइड द कंडक्टर ना, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता? 0. Next question, two parallel infinite line charges with linear charge densities plus lambda coulomb per meter and minus lambda coulomb per meter are placed at a distance of 2r in free space. What is the electric field midway between the two line charges? ये two line charges are there, that is एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, ये दोनों के बीच में गैप दिया 2r है. ये आस्किंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द टू प्लेट्स. पॉजिटिव प्लेट का वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे एक्ट होता, नेगेटिव प्लेट का वजह से टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट एक्ट होता. बोले तो सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहता? दोनों एक ही तरफ एक्ट हो रहा. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव प्लेट. पॉजिटिव प्लेट के लिए E1 ले लो, नेगेटिव प्लेट के लिए E2 ले लो. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए फार्मूला क्या मिले हमको? E is equal लैम्डा बाई 2 pi epsilon naught R. उसको डेरिवेशन है, ये फार्मूला याद रखना. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर के लिए फार्मूला इज लैम्डा बाई 2 pi epsilon naught R. ये फार्मूला याद रखना, ये फार्मूला ओनली इधर अप्लाई करना. E1 का जगह पे क्या लिखना? लैम्डा बाई 2 pi epsilon naught. प्लेट से सेंटर तक गैप कितना है? पूरा गैप 2r है, सेंटर तक कितना रहा था? r रहा था. ये कौन सा डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है? अलोंग x डायरेक्शन, पॉजिटिव x डायरेक्शन है तो आई कैप लेना. प्लस नेगेटिव चार्ज की वजह से कैसे रहता? टुवर्ड्स नेगेटिव एक्ट होता. सो वो भी सेम है, लैम्डा बाई 2 pi epsilon naught r into a b आई कैप ले लो. दोनों एक ही तरफ एक्ट हो रहा ना, बोथ आर एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन. दोनों ऐड करो, लैम्डा बाई 2 pi epsilon naught r प्लस लैम्डा बाई 2 pi epsilon naught r क्या आएगा? 2 लैम्डा बाई 2 pi epsilon naught r into I cap. 2 gets cancelled. So answer is lambda by pi epsilon naught r into I cap. This is the final answer. So option C is correct. The next question, a hollow metal sphere of radius r uniformly charged. The electric field due to sphere at a distance r from the center. For example, a hollow metallic sphere, a conducting sphere है. conducting sphere बोले तो charges outside है. electric field intense inside कितना रहा था? 0. no charge inside है, inside the metal sphere. that's why electric field intense inside कितना रहा था? 0. center से surface तक 0 ही रहा था. but इसके बाद क्या रहा था? electric field intense decreasing आ रहा है. ये कैसे रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली इनसाइड इट इज 0. और आउटसाइड के लिए, इनसाइड के लिए, आउटसाइड के लिए कैसे रहा था? बाय यूजिंग गॉस लॉ. आउटसाइड क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E bar dot ds. गॉस लॉ क्या है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू
1 by epsilon naught times net charge enclosed in it. Right now? Now the point is outside. Inside of the car are directly 0. 0 as r increases for r less than r. r लेस देन r बोले तो रेडियस है, रेडियस तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कितना है, सेंटर से सरफेस तक 0 ही रहा था. क्यों 0 रहा था, नो चार्ज इज इनसाइड द स्फीयर, दैट्स व्हाई डायरेक्टली 0 है. बट आउटसाइड के लिए by using Gauss law integral of E bar dot ds equal क्या मिले, q by epsilon naught. एक Gaussian surface, for example ये पॉइंट के पास है, हम we have to draw a Gaussian surface that is in the form of sphere. इसके लिए क्या करना, E into integral of closed integral of ds bar is equal to कितना मिलेगा, q by epsilon naught. ये भी स्पीयर ओनली ना, स्पीयर का एरिया फार्मूला क्या, E into 4 pi r square is equal to q by epsilon naught. So cross multiply कर E is equal क्या मिलेगा, 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. यहाँ से E and r का रिलेशन क्या है, E is inversely proportional to r square. उसका मीनिंग क्या है, सरफेस से r वैल्यू इंक्रीजेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, डिक्रीजेस, बिकॉज E is inversely proportional to r square. This is from surface of the shell outside. इनसाइड कितना है, पूरा डायरेक्टली 0 है इनसाइड, क्यों, नो चार्ज इनसाइड द शेल, राइट. सो कौन सा ऑप्शन इज राइट, इंक्रीजेस आर इंक्रीजेस, वो गलती है ना, स्टेटमेंट गलती है. सो क्यों, शेल का इनसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, 0 है, वो डायरेक्टली गलती आंसर है. 0 एज आर इंक्रीजेस फॉर आर लेस देन आर, बोले तो रेडियस तक इंटेंसिटी कितना है, 0. डिक्रीजेस एज आर इंक्रीजेस फॉर आर ग्रेटर देन आर. सेकंड केस के लिए क्या है, आर इज ग्रेटर देन आर, सर रेडियस क्या ले लो, कैपिटल आर ले लो. आर इज ग्रेटर देन आर है तो क्या होता, डिक्रीजिंग, बिकॉज ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. सो कौन सा ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन बी इज करेक्ट. थर्ड वन क्यों रॉन्ग है, 0 एज आर इंक्रीजेस, आर इंक्रीज है 0 ही रहता ना, बट आर इंक्रीजेस फॉर आर इज लेस देन आर, ये तो रही है, इंक्रीजेस एज आर इंक्रीजेस फॉर आर इज ग्रेटर देन आर, बट इधर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट इन्होंने इधर दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. बोले तो आर वैल्यू इंक्रीज है तो ई भी इंक्रीज होता बोल के दिया, इसलिए थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग. फोर्थ भी रॉन्ग है, ओनली बी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस h इन ए यूनिफॉर्म एंड वर्टिकली अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. देखो फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एक्ट हो रहा, अपवर्ड डायरेक्शन. आपको पता है चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसका ऊपर अपवर्ड एक्ट हो रहा, बोले तो फोर्स कौन सा डायरेक्शन में एक्ट होता, डाउनवर्ड एक्ट होता. उसका इलेक्ट्रॉन का वेट भी डाउनवर्ड एक्ट होता. नेट फोर्स क्या होता, नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स. नेक्स्ट, नाउ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स्ड, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड सेम. ए प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस. अभी इलेक्ट्रॉन जगह पे हमने प्रोटॉन रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स किया है, बट प्रोटॉन का चार्ज क्या है, पॉजिटिव है. पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड फोर्स दोनों एक ही तरफ एक्ट होता. अभी क्वेश्चन में दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स, सो इलेक्ट्रॉन के लिए अपवर्ड एक्ट हो रहा, प्रोटॉन के लिए क्या है, डाउनवर्ड है. बट चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट होता. फाइनली इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेट फोर्स डाउनवर्ड एक्ट हो रहा, प्रोटॉन के ऊपर नेट फोर्स भी डाउनवर्ड एक्ट हो रहा. ये दोनों में डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स तो सेम ही रहा था बट वेट का वजह से चेंज होता. वेट ऑफ, बोले तो मास ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन दैट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट ना. दोनों कितना हाइट से फॉल हो रहा, सेम वर्टिकल डिस्टेंस h. इसलिए फ्रॉम बाय यूजिंग s इज इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0, सो हाफ at स्क्वायर. ये बोले तो एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल eq by m into t स्क्वायर. सो h इज सेम बोल के दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी सेम है. क्या डिफरेंस है, टाइम एंड मास डिफरेंस है. t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास. किसका मास कम है तो उसका टाइम भी कम रहता है. ये आस्किंग फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कम है क्या, प्रोटॉन का मास कम है. प्रोटॉन का मास इज मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन मास. टाइम भी किसको ज्यादा रहता रहा, प्रोटॉन को ज्यादा रहता, इलेक्ट्रॉन को कम रहता. बट ये आस्किंग क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन के लिए पूछे, इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे रहता, स्मॉल है, दैट इज द आंसर.
H इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, ये जगह पे EQ बाई हम लिखा। थोड़ा क्वेश्चन में रीड करना प्रॉपरली। इलेक्ट्रॉन का ऊपर फोर्स अपवर्ड एक्ट हो रहा, प्रोटॉन का ऊपर फोर्स डाउनवर्ड एक्ट हो रहा। बट इलेक्ट्रॉन का ऊपर फोर्स अपवर्ड है तो उसका ऊपर फोर्स डाउनवर्ड एक्ट होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड फोर्स एंटी पैरेलल है, इसलिए फोर्स इज एक्टिंग डाउन। बट हियर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड फोर्स का डायरेक्शन दोनों सेम है, बट इधर क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन रिवर्स किया। सो फाइनली फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन प्रोटॉन दोनों एक ही तरफ एक्ट हो रहा है, नेट फोर्स, राइट। सो फाइनली टाइम एंड मास का रिलेशन T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m। हमको पता है मास ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन दैट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना टाइम ज्यादा रहता रहा, 1836 टाइम्स ज्यादा रहता। सो टाइम टेकन बाय द प्रोटॉन इज मोर देन दैट ऑफ टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू फॉल ए डिस्टेंस ऑफ h। सो यू आस्किंग फॉर द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। टाइम फॉल इलेक्ट्रॉन के लिए लेस रहा था, प्रोटॉन के लिए ज्यादा रहा था। सो कौन सा वाला राइट, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, ए इज स्मॉलर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a toy car with charge q moves on a frictionless horizontal plane। a toy car move हो रहा है from A to B first, ऐसा move हो रहा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए फोर्स EQ। फोर्स ऑन द टॉय कार कितना है, EQ। इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 6 मीटर पर सेकंड। बोले तो स्टार्टिंग विद 0, एंडिंग स्पीड कितना है, 6 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड ड्यूरेशन। 1 सेकंड में उसका स्पीड 0 to 6 तक बढ़ गया। At that instant, the direction of the field is reversed। बोले तो 6 मीटर पर सेकंड, when the speed is 6 मीटर पर सेकंड, उसका स्पीड का, that means डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स हुआ है। बोले तो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा। The car continues to move for 2 more seconds। ऑलरेडी 0 to 6 के लिए 1 सेकंड ट्रेवल हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स होने के बाद कितना टाइम ट्रेवल हुआ, 2 सेकंड। पूरा कितना सेकंड ट्रेवल हुआ, टॉय कार 3 सेकंड ट्रेवल हुआ, राइट। Then he asking the average velocity and average speed of the toy car between 0 to 3 seconds। 0 to 3 seconds का बीच में एवरेज स्पीड कितना है, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहे। हमको पता है एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो कैलकुलेट करेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, distance traveled by toy car in 1 second, traveled by toy car in 1 second। distance का फार्मूला क्या है, S is equal to U plus V by 2 into T। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0। क्या दिया, 0 to 6 ना, 0 plus 6 by 2 into कितना टाइम, 1 सेकेंड रहा। 6 by 2 कितना है, 3 मीटर। बोले तो 1 सेकंड में 3 मीटर ट्रेवल हुआ है। 1 सेकंड में 3 मीटर है तो और 2 सेकंड में कितना ट्रेवल होता, और 2 सेकंड में 6 मीटर ट्रेवल होता। बोले तो A to B गैप कितना है, 3 मीटर्स। B to A गैप भी 3 मीटर्स। सो पूरा 3 सेकंड का ऊपर बोल रहे ना। फर्स्ट 1 सेकंड में A to B गया, नेक्स्ट 2 सेकंड में B to C आता, वो कितना रहा था, 3 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ पार्टिकल, 3 प्लस 3, पूरा 9 मीटर्स ट्रेवल हुआ। डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट बोले तो स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट का गैप शॉर्टेस्ट पाथ है। डिस्प्लेसमेंट इज 3 मीटर। टॉय कार का इनिशियल पोजीशन क्या है, A, फाइनल पोजीशन क्या है, C। डिस्प्लेसमेंट के लिए खाली सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल ही देखना, कितना है, 3 मीटर। बोले तो डिस्प्लेसमेंट इज 3, बट डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस के लिए हम सब ऐड करना पड़ेगा। A to B 3 मीटर्स, B to A 3 मीटर्स, A to C 3 मीटर्स। टोटल डिस्टेंस कितना है, 9 मीटर्स। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, शॉर्टेस्ट पाथ बोले तो 3 मीटर ओनली। सो राइट, टोटल डिस्टेंस इन 3 मीटर्स। टोटल डिस्टेंस इन 3 सेकेंड्स कितना है, 9 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 3 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 3 मीटर्स। अभी हम कैलकुलेट करना एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। फर्स्ट एवरेज वेलोसिटी ना, आपको पता है एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या मिले, 3, टाइम भी 3 है। टोटल टाइम कितना है, 3 by 3 कितना है, 1। सो एवरेज वेलोसिटी कितना है, 1 मीटर पर सेकंड।
नेक्स्ट एवरेज स्पीड के लिए, एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस कितना है? 9. टोटल टाइम इज 3. 9/3 is 3. So answer is 3 meter per second. Average velocity is 1 meter per second. Average speed is 3 meter per second. So option B is correct. Next question. A thin conducting ring of radius R given a charge plus Q. The electric field at the center O of the ring due to charge on the part A KB. ए चार्ज का वजह से फील्ड इज ई दिया है. बोले तो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, फील्ड कैसे रहता है? ए पार्ट का वजह से फील्ड ऐसा एक्ट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट ना. द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ए सी डी बी. एक्चुअली चार्ज आउटसाइड है ना रे. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग रिंग कितना रहता है? 0 ओनली ना. क्यों? चार्ज आई के अंदर, अंदर चार्ज ही नहीं है, पूरा चार्ज आउटसाइड है. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अंदर इज 0. बोले तो ये केबी ए पार्ट का वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ए डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है. ये न्यूट्रलाइज करने के लिए ड्यू टू पार्ट ए सी डी बी के लिए कैसे एक्ट होता है? ऐसा एक्ट होता है. दोनों मस्ट बी एंटी पैरेलल ना. ये जो पार्ट है ना, ए पार्ट का वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ए डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, वो ई है. सो पूरा न्यूट्रलाइज करने के लिए रिमेनिंग पार्ट का वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसको बराबर अपोजिट रहता. सो एलॉन्ग कौन सा पाथ में रहता है? एलॉन्ग वो के. सो व्हिच इज करेक्ट आंसर? ई एलॉन्ग वो के इज द करेक्ट आंसर. न्यूट्रलाइज. नेट फील्ड कितना है रहा? ई नेट इनसाइड कितना है? 0. बोले तो ए के बी का वजह से फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन पर कूलम है, ए सी डी बी का वजह से भी 10 न्यूटन पर कूलम, बट बराबर उसको अपोजिट में एक्ट होना. एट दैट टाइम ओनली नेट फील्ड 0 होता. इसका वजह से +10 है तो इसका वजह से -10 आना. एट दैट टाइम ओनली नेट फील्ड क्या होता? 0 होता. सो ए सी डी बी का वजह से फील्ड कौन सा डायरेक्शन में एक्ट होता है? अलोंग दैट पाथ. ई अलोंग वो क्या एक्ट होता. दैट्स इट. नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर and having a charge of 500 microcoulombs at a point on the axis at a distance 20 centimeters from the one of the charge in air. Now I am taking a negative charge or a positive charge. You asking the question, what is the electric field at a point P at a distance 20 centimeters from one charge. बोले तो for example positive charge से 20 सेंटीमीटर है, नेगेटिव चार्ज से कितना रहता? 20 + 10 30 सेंटीमीटर्स ना. इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कौन सा डायरेक्शन में एक्ट होता रहा? ऐसा एक्ट होता. नेगेटिव चार्ज का वजह से कैसा एक्ट होता? अपोजिट एक्ट होता. बराबर है क्या? कभी भी पॉजिटिव चार्ज का वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट का तरफ एक्ट होता, अगर चार्ज नेगेटिव है तो चार्ज का तरफ एक्ट होता. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो रिजल्टेंट निकलना पड़ेगा. ई नेट इज इक्वल ई प्लस माइनस ई क्यू, ई माइनस क्यू, राइट ना. पॉजिटिव चार्ज का वजह से पॉइंट का तरफ, नेगेटिव चार्ज का वजह से चार्ज का तरफ. सो फार्मूला क्या है? के क्यू बाई R1 स्क्वायर माइनस के क्यू बाई R2 स्क्वायर. के क्यू कॉमन हो लेना है, के क्यू बाहर निकालो. के क्यू इंटू 1/R1 स्क्वायर माइनस 1/R2 स्क्वायर. फिर R1 बोले तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज कितना है रहा? 20 सेंटीमीटर्स. पॉजिटिव चार्ज से कितना दूर है? 20 सेंटीमीटर्स. बोले तो 20 इंटू 10⁻², बोले तो 2 इंटू 10⁻1 मीटर. सिमिलरली नेगेटिव चार्ज से कितना है? R2 ले लो, 20 + 10 30 है रहा, कितना है पूरा? 30 सेंटीमीटर. बोले तो 3 इंटू 10⁻1 मीटर. ये सभी वैल्यू से फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, आंसर मिल जाएगा. ई नेट इज इक्वल टू के वैल्यू 9 इंटू 10⁻9. चार्ज क्या दिया? 500 माइक्रोकूलम रहा. 500 into 10⁻⁻6. We can write that is 5 into 10⁻⁻4 into 1/R1 square. बोले तो 1/4 into 10⁻⁻2 minus 1/9 into 10⁻⁻2. सिंप्लीफाई करो, 10⁻⁻2 बाहर निकालो. 9 4 जा 9 5 जा 45. 45 into 9 - 4 10⁻5. 10⁻⁻2 बाहर लेके जाओ, एलसीएम करो. 9 - 4/9 4 जा 36. सो क्या मिलेगा आंसर? 9 - 4 5. 45 into 5/36 into 10⁻5 - 2 पर लेके जाओ 10⁻7 है. सो 36 है तो 9 5 जा 45, 9 4 जा
36 25/4 into 10 power 7 आंसर 25/4 बोले तो 6.25 6.25 into 10 power 7 Newton per coulomb. So option A is correct. The next question, if a dipole of moment p bar is placed in uniform electric field, the torque acting on it is given by, आपको डायरेक्टली आता है टॉर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. वो फार्मूला सिंप्लीफाई करने के बाद आपको आएगा पी साइन थीटा आता, पी साइन थीटा. पी साइन थीटा बोले तो एक क्रॉस प्रोडक्ट ना, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए बार आता, पी बार क्रॉस क्रॉस आता, पी बार क्रॉस ई बार. सो डायरेक्ट फार्मूला है, टॉर्क इज इक्वल टू पी बार क्रॉस ई बार, ये वेक्टर है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ये डायरेक्ट फार्मूला है, डिराइव करने की जरूरत नहीं. नेक्स्ट, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई बार डॉट डीएस इक्वल टू 0 बोले तो फ्लक्स इज 0 रहा, फ्लक्स इज 0 ओवर ए सरफेस, देन व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट, वो भी गलती है. ऑल द चार्जेस मस्ट नेसेसरली बी इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस द फ्लक्स रहता, वो भी गलती है. द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म, वो भी गलती है. नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू लीविंग द सरफेस, ये करेक्ट है. क्यों? कभी भी फॉर क्लोज्ड सरफेस के लिए आउटवर्ड फ्लक्स इज टेकन एज पॉजिटिव, इनवर्ड फ्लक्स इज टेकन एज नेगेटिव. सो नेट फ्लक्स क्या होता है उसी टाइम? पाई नेट इज इक्वल टू 0 फॉर क्लोज्ड सरफेस. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट, a sphere encloses an electric dipole with charge 3 into 10 power minus 6. A dipole है, positive charge is there, negative charge is there. What is the total electric flux across the sphere? बोले तो ये स्पीयर में 2 चार्जेस है, एक प्लस क्यू है, दूसरा वाला माइनस क्यू, दोनों इक्वल एंड अपोजिट ना रहे. नेट चार्ज क्या होता है ये दोनों का वजह से? नेट चार्ज कितना होता? 0. नेट चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है? 0. सो आंसर इज 0. नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए सर्टेन रीजन इन एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड एंड इज गिवन बाय E is equal to AA. A charge contained in a sphere of radius A centered at the region of the field will be given by, charge is asking from Gauss law. From Gauss law, what is the formula? Integral of E bar dot, closed integral of E bar dot ds is equal to Q by epsilon naught. हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर आपको Q चाहिए ना, Q is equal to E into integral of closed integral of ds into epsilon naught. इंटीग्रल ऑफ ds बोले तो क्या होता है? कौन सा शेप है बॉडी? स्पीयर. स्पीयर के लिए फार्मूला क्या है? 4 पाई r स्क्वायर ना, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर. आर जगह पे क्या दिया? ए दिया, 4 पाई a स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट. बट E वैल्यू उन्होंने क्या दिया? a इंटू ए दिया. सो टोटल चार्ज क्या होता है? E जगह पे कैपिटल A इंटू स्मॉल a सब्स्टिट्यूट करो. सो कैपिटल A इंटू स्मॉल a इंटू 4 पाई a स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट. a स्क्वायर इंटू a क्यूब होता है. Finally, we can write the formula 4 pi epsilon naught capital A into A square A cube. So option B is correct. This is from Gauss law. Next, what is the flux through a cube of side A at a point charge Q is at one of its corner? One of its corner है तो कैसे रहता? A cube है, see here, a cube. चार्ज एक कॉर्नर पे रखा है, चार्ज एक कॉर्नर पे रखा है, तो ये चार्ज क्लोज करने के लिए हाउ मेनी क्यूब्स आर नीडेड? ये चार्ज क्लोज करने के लिए हाउ मेनी क्यूब्स आर नीडेड? फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, एक क्यूब है, एक कॉर्नर पे चार्ज रखा, जस्ट लाइक ए स्फीयर इधर रखा. ये स्फीयर क्लोज करने के लिए नीचे 3 मोर क्यूब्स आर नीडेड. सॉरी, ये स्फीयर क्लोज करने के लिए नीचे 3 मोर क्यूब्स आर नीडेड. पूरा ऊपर से क्लोज करने के लिए और 4 क्यूब्स आर नीडेड. So to close the charge, how many cubes are needed totally? 8 cubes are needed. Already a cube is given right now. So to close the charge, how many cubes are needed? 7 more cubes are needed. But he asking the question, charge through one of its corner. Flux through one cube. What is the flux through a cube of side A if a point charge Q is at one of its corner? Flux through a cube. Total how many cubes are there? To close the charge 8 cubes, but he asking through only 1 cube. 1 cube है तो क्या होता? For 8 cubes के लिए Q by 8 epsilon naught, Q by epsilon naught. Net through 1 cube के लिए कितना आता? How many cubes are needed?
to close the charge 8 cubes through 1 cube hai to 1 by 8 times of q by epsilon naught. So कौन सा option is right? q by 8 epsilon naught is correct. To close the charge ये क्यूब छोड़ के 7 more cubes are needed. Total 8 cubes का वजह से पूरा चार्ज एनक्लोज होता, उसका वजह से नेट फ्लक्स कितना है q by epsilon naught. थ्रू 1 क्यूब बोले तो कितना आता, टोटली डिवाइड, टोटल फ्लक्स इज डिवाइड इनटू 8 पार्ट्स. So 1 by 8 times of q by epsilon naught. Next, a charge q is enclosed by a Gaussian spherical surface of radius r. If the radius is doubled, रेडियस डबल है तो साइज ऑफ द बॉडी इंक्रीज होता रहे बट फ्लक्स चेंज नहीं होता. ओके, मैंने चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन शेप में डिपेंड नहीं होता, साइज में डिपेंड नहीं होता, पोजीशन में भी डिपेंड नहीं होता. सो रेडियस डबल है तो उसका साइज इंक्रीज होता रहे बट फ्लक्स चेंज होता क्या, फ्लक्स इज रिमेन्स सेम. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट, स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड, a square surface of side L meter in the plane of the paper is placed in uniform electric field E, acting along same plane, acting along same plane at an angle theta with horizontal side L of the square as shown in figure. The electric flux linked with the surface in units of voltmeter. देखो, for example ये स्क्वायर प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका एरिया वेक्टर कैसे रहता, दिस इज एरिया, एरिया वेक्टर कैसे रहता है, ऐसे ऊपर एक्ट होता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड सेम प्लेन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे एक्ट हो रहा, ऐसे एक्ट हो, मेक्स एन एंगल थीटा, ऐसा नहीं थोड़ा बेंड, ऐसा एंगल है, एंगल मेक्स विथ थीटा विथ प्लेन सरफेस. ओके, ये एरिया ऑफ द प्लेन सरफेस कैसे एक्ट हो रहा, ऊपर एक्ट हो रहा, राइट ना. अभी इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एन एंगल थीटा विथ दिस सरफेस, एरिया को थीटा में भी है, बट कभी भी फ्लक्स के लिए हम क्या लेना है, एंगल बिटवीन area vector and the electric field intensity, right now. Area vector is acting up, electric field is acting along this direction, नहीं है तो लेला ऐसा कैसा है तो भी एंगल कितना रहता, 90 डिग्री से रहता. सो फ्लक्स का फार्मूला क्या है, फ्लक्स इज क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E bar dot ds ना. सो वी कैन राइट दैट इज E ds cos 90, cos 90 वैल्यू कितना है 0, सो फ्लक्स कितना है 0. सेम प्लेन बोल के दिया ना, सो आंसर क्या होता 0. कभी भी फ्लक्स के लिए एंगल किसको किसको बीच में लेना, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बट नॉट विथ एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सेम प्लेन दिया बोले तो एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर ही रहता. नेक्स्ट, ए हैलो सिलेंडर हैज ए चार्ज q कूलम विथ इन इट. इफ पाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट्स ऑफ वोल्टमीटर associated with the curved surface B, the flux linked with the plane surface A of units. देखो फ्लक्स थ्रू, फॉर एग्जांपल ये सिलेंडर है, ओके, ये अंदर चार्ज है, क्यू चार्ज है, फेस ए बी ए कर्व्ड सरफेस, दिस टू आर प्लेन सरफेस बोलते, दिस टू आर प्लेन सरफेस, दिस इज कर्व्ड सरफेस बोलते, राइट ना. नेट फ्लक्स क्या होता फ्रॉम गॉस लॉ, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. नेट फ्लक्स बोले तो फ्लक्स थ्रू ए प्लस सी प्लस बी, बट ए से कितना फ्लक्स है तो सी से भी उतना ही जाता है, बराबर है क्या नहीं, उसको सरफेस सेम होली ना. सो फ्लक्स थ्रू ए प्लस सी प्लस बी इक्वल कितना है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, बट ए एंड सी का सेम होली ना, ए से कितना फ्लक्स है तो सी से भी उतना ही जाते, ये दोनों मिला के आप 2 पाई ए ले लो, पाई ए प्लस पाई सी 2 पाई ए, एंड फ्लक्स थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस दिया, कर्व्ड सरफेस बोले तो बी है, ये कर्व्ड सरफेस बोलते, कर्व्ड सरफेस के लिए कितना दिया, पाई दिया, राइट ना. सो पाई भी जगह पे पाई लिखो, इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. बट यू आस्किंग द क्वेश्चन फ्लक्स लिंक्ड विथ प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस बोले तो ए इज प्लेन सरफेस, सी आल्सो प्लेन सरफेस, बट फ्लक्स थ्रू ए एंड सी बोथ आर इक्वल ओनली ना, एनीवन वी कैन कैलकुलेट. सो 2 पाई ए इज इक्वल क्या मिलेगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ए पाई राइट साइड लेके जाओ माइनस पाई, फ्लक्स थ्रू ए इज नथिंग बट क्या होता 1/2 टाइम्स ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस पाई. दैट्स इट, दिस इज द आंसर. तो कौन सा ऑप्शन राइट, ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट, ए चार्ज q is located at the center of a cube, the electric flux through faces, each face. क्यूब के लिए how many faces are there, क्यूब का how many faces रहता 6 faces. चार्ज कहाँ रखा, सेंटर में रखा,
राइट ना, चार्ज क्लोज है ना रे, सो नेट फ्लक्स कितना है q by epsilon naught, but he asking flux through each phase, क्यूब में how many phases are there, 6 phases, flux through each phase है तो क्या रहा था by 6 लिखना, flux through each phase इधर pi is equal to 1 by 6 times of q by epsilon naught, ऑप्शन डायरेक्टली नहीं दिया ना, ये देखो ऑप्शन सी में 4 by 4 पे कट करो वही मिलेगा 1 by q by 6 epsilon naught, so C is correct. Next, a charge q is placed at the center of q, the flux coming out through any surface, ये भी सेम है बट माइक्रोकूलम में दिया ना q by 6 epsilon naught, इधर माइक्रोकूलम में तो क्या लिखना 10 power minus 6 coulombs, 10 power minus 6, so A is correct. This is answer. Next, a charge q is placed at the corner of the cube, the electric flux through all 6 phases, all 6 phases बोले तो each cube रहा टोटल, अगर चार्ज कॉर्नर पे रखा है तो ऑलरेडी हम प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, हाउ मेनी क्यूब्स आर नीडेड, 7 more cubes are needed to close the charge, totally 8 cubes are needed, flux through each cube कितना है 1 by 8 times of q by epsilon naught, ये भी सेम क्वेश्चन है राइट ना, सो फ्लक्स थ्रू 6 फेस ऑफ द क्यूब, 6 फेस ऑफ द क्यूब बोले तो 1 क्यूब है, फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब, फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब कितना है 1 by 8 times of q by epsilon naught, that's it, this is the answer.